नमस्ते बिटिया। I'm JVN doctor, Dr. Suman Shekhawat, Department of Kai Chikitsa, Jyoti Vidyapit, Women's University, Jaipur, Faculty of Ayurvedic Sciences. Today we will discuss on कंपवात। कंपवात जो है इसको लक्षणों के आधार पे, इसके जो कारण हैं उनके आधार पे आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न साइंस से अगर कोरिलेट करते हैं तो पार्किंसोनिज्म डिजीज से इसको कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके निदान पढ़ेंगे। कंपवात के निदानों का संहिताओं में, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में जो कारण है उनका कुछ इस प्रकार से वर्णन है कि जो भी वातकारक आहार और विहार हैं जो अत्यधिक जो है वात का वर्धन करने वाले होते हैं, जैसे कि जो है अकाल भोजन, प्रमित आहार का सेवन, असमय जो आहार का सेवन करते हैं या कम मात्रा में आहार का सेवन करते हैं, रुक्ष आहार विहार का सेवन करते, विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, या अत्यधिक जैसे व्यायाम करना जो है और अध्वगमन जो है पैदल चलना, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये वात की वृद्धि करती हैं और इन्हीं से जो है कंपवात रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ इसके लक्षणों के लिए जो है माधव निदान ने बताया है कि वात व्याधि निदान के अंतर्गत कि सर्वांग कंप है शीर्षो वायुर वेपथु संज्ञ क्या है, वेपथु जो है कंपन के लिए है। ठीक है, तो सर्वांग में कंप यानी पूरे शरीर के अंदर कंप होना या फिर केवल सिर के अंदर कंप होना, ये कंपवात के लक्षण हैं। इसकी चिकित्सा अगर हम देखें तो श्वेदन, स्नेहन, भ्रंगण चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, इस तरह की चिकित्सा का इसके लिए वर्णन आया है। अब इसी के क्रम के अंदर हम देखते हैं पार्किंसोनिज्म डिजीज, जिससे इसका कोरिलेशन किया गया है। तो पार्किंसोनिज्म डिजीज जो है इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर ऑफ द cerebral nervous system that mainly affect the motor system, that symptoms generally aim on slowly over time. Early in the disease, the most obvious are shaking, rigidity, slowness of movement, and difficulty of the walking. Classification of Parkinsonism is primary or idiopathic, secondary or acquired, hereditary Parkinsonism, Parkinson plus syndrome, or multiple system degeneration. The sign and symptoms of Parkinson disease basis on the motor and non-motor sign and symptoms. Motor symptoms are tremor, rigidity, slowness of movement, postural instability, and tremor, rest tremor, and disappearing with voluntary movement and sleep. Thumb and index finger touch. Hypokinesia, slowness of movement, bradykinesia, rigidity like uniform lead pipe rigidity, and cogwheel rigidity you can see, and postural instability is leading to impaired balance and frequent falls. Non-motor symptoms are thinking and behavior problems, depression, anxiety. Causes of Parkinsonism is environmental factors like pesticide exposure, head injury, living in the rural environment, and drinking of well waters. Genetic causes are some hereditary. The motor symptoms of the disease results from the death of the cell in the substantia nigra, a region of midbrain. This results in not enough dopamine in these areas. The reason for this cell death is poorly understood but involves the buildup of protein into Lewy bodies in the neuron. Diagnosis mainly based on symptoms, neuroimaging being used to rule out the disease. Treatment of Parkinsonism is exercise, antioxidants, levodopa, vitamins, and dopamine,
agonists like bromocriptine, pergolides, and bromipixol, and ropinirole, and pyridinal, etc. And MAO beta inhibitors like safinamide, selegline increase the level of dopamine in the basal ganglia by blocking the metabolism. Other drugs are like omantidine, anticholinergic, and cholinesterase inhibitor for dementia, modafinil for daytime sleepiness surgery. Two groups are lesional surgery and deep brain stimulation. Deep brain stimulation. Lesional surgery and deep brain stimulation. We can do in Ayurveda. If we are talking about the treatment of Ayurveda in Kampavad, then we can say स्नेहन श्वेदन भृंगण चिकित्सा एंड रसायन चिकित्सा वात शमनार्थ जो चिकित्सा है वो हमें यहाँ प्रयोग करनी चाहिए। जैसे स्नेहन के लिए हम महानारायण तेल से अभ्यंग करा सकते हैं। अभ्यंतर स्नेह के रूप में हम घृतपान दे सकते हैं या बस्ती जो है रोगी को प्रयोग करा सकते हैं। इसके लिए हम जो है कर्मकाल योग तीनों प्रकार से बस्ती दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर मात्रा बस्ती दे सकते हैं। ये पेशेंट और डिजीज़ जो है उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट को स्नेहन के पश्चात स्वेदन कराना चाहिए। भृंगण चिकित्सा जो है वह रोगी को देनी चाहिए। जैसे हम पेशेंट को जो है श्वेदनार्थ पत्रपिंड श्वेद करा सकते हैं। और जो है जिस भृंगण चिकित्सा के लिए, रसायन चिकित्सा के लिए पेशेंट को कौशपाक या फिर नारसिंग चूर्ण, अग्नितुंडी, वट्टी, बलारिष्ट इनका प्रयोग करा सकते हैं। अगर रोग की कोष्ठबद्धता से ग्रसित है, अजीर्ण है पेशेंट को, हरित के चूर्ण जो है वो पेशेंट को चलाया जा सकता है। ये जो कारण जिस प्रकार मैंने आपको बताए अभी कंपवात के कि जैसे ट्रॉमा कोई हो, हेड इंजरी, आयुर्वेद के अंदर तो वात कारक आहार विहार बताए जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको शमनार्थ चिकित्सा भी बताई। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ जैसे ट्रॉमा, हेड इंजरी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, पोस्ट एंसेफेलाइटिक पार्किंसोनिज्म हो सकता है, कुछ इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं लाइक पैरालिसिस, एजिटेशन एंड लाइक मेटेलिक पॉइजनिंग हो सकती है जिसमें ड्रग्स जैसे रिसरपिन या फिनोथिएजाइड या हेलोपेरिडोल एट्सेट्रा, ये सभी कारण की वजह से अभी अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सब्सटेंशिया नाइग्रा और लेवी बॉडी में उपस्थित जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं जिनमें कि मेलानिन होता है उनका क्षय हो जाता है, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से रोगी को क्या होता है, ट्रेमर्स होता है, रिजिडिटी होती है, या जो एक तरह का मसल्स के जो एक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं और रोगी को पार्किंसोनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है जिसके अंदर जो है इस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू। आई होप you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. This session is powered by 2.0 digital version, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Please mention your problems in the comment box. I will resolve it soon. Thank you.